Assalamu alaikum guys. Today the topic we're going to discuss is intestinal obstruction. Intestinal obstructions basically हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं. Either it can be a dynamic obstruction or it can be an adynamic obstruction. Dynamic obstruction basically means that the peristalsis is still intact, whereas adynamic obstructions will be those जिसमें there is no peristalsis, or if the peristalsis is present, it is non-propulsive in nature. If we talk about the reasons for dynamic intestinal obstructions, they can be threefold. First of all, obstruction can be present within the lumen of the intestines, and it will be an intraluminal cause. Intraluminal causes it could be any impacted mass, it could be a foreign body, it could be a stercolith, it could be a gallstone जो कि erode करता हुआ duodenum के through intestines में कहीं आकर फंस गया है. It could be any phytobezoar or a trichobezoar. Trichobezoar is basically a ball of hairs. जिन लोगों के अंदर psychiatric problems होती हैं, they keep chewing their hair. उनकी intestines के अंदर it can form a ball जो कि obstruction करा सकती है. और phytobezoar is a ball of fibers basically. जो लोग बहुत high dietary fiber खाते हैं, inadequate chewing करते हैं, या जिनके अंदर कोई previous gastrectomies वगैरह हुई भी हो और उनकी digestion proper ना हो रही हो, उनके अंदर भी fiber can become impacted. It could also be any foreign body, or it could be a mass of worms. जैसे कि Ascaris lumbricoides जो है, it can form a ball of worms which can cause an intestinal obstruction. All of these will be the intraluminal causes of obstruction. In these cases, peristalsis is normal और वो propel करने की कोशिश कर रही होगी इस mass को forwards. लेकिन it will fail to do so, and that will result in the obstruction. जो second cause हो सकता है of a dynamic intestinal obstruction, it can be any intramural cause. For example, कोई adhesions बन जाएं. These adhesions in the cases of Crohn's disease हो सकती हैं, या TB के cases में हो सकती हैं, या फिर they can also be in the cases of certain malignancies. Lymphomas are more likely to cause any adhesions and strictures. बाकी sarcomas वगैरह में generally नहीं होते. So ये जो आपके पास intramural cause है, ये भी हमारे पास luminal obstruction करा देगा. The third cause could be extramural, यानी कि अब जो problem है that lies outside the intestinal wall. अब extramural causes में हमारे पास volvulus आ जाएगा, interceptions आ जाएंगी, कोई hernias हो सकते हैं, और there could also be any adhesions. So इसके लिए we need to understand कि ये obstruction किस तरह से हो रही होती है. Suppose कि there is any hernial orifice and a loop of intestines passes through it. So जब वो बाहर निकलेगा तो it will be obstructed at this point. इसको हम closed loop obstruction कहते हैं, जिसमें आपके पास दो points पर जो है obstruction हो रही होती है. So this is basically a closed loop obstruction. Now, while we're at it, we also need to understand the difference between a strangulated and a non-strangulated obstruction. Strangulated obstruction वो है जिसमें blood supply compromise हो रही है. Now, if we see in this case, अगर हमारे पास luminal obstruction है, तो आपके पास even though there is obstruction to the passage of food, लेकिन कोई blood vessels आपके पास blood supply compromise नहीं हो रही है. So even though आपके पास food आगे पास नहीं कर रहा, but right now this portion of the intestines is still viable because इसकी blood supply is still intact. However, if we look at this picture जिसमें आपके पास कोई हर्निया हुआ है और स्ट्रैंगुलेशन भी हो गई है. नाउ इन दिस केस ना सिर्फ हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, बल्कि जो ब्लड सप्लाई होगी दैट विल आल्सो बी कॉम्प्रोमाइज्ड. एज अ रिजल्ट ये जो लूप है ऑफ इंटेस्टाइन्स, इट विल इवेंचुअली अंडरगो इस्कीमिया एंड इंफाक्शन एंड गैंग्रीन हो जाएगी. सो दिस इज अ स्ट्रैंगुलेटिंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड दीज विल बी नॉन स्ट्रैंगुलेटिंग ऑब्स्ट्रक्शंस. सो ये मेन थ्री इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं ऑफ द डायनामिक इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस: इंट्राल्यूमिनल, intramural, or extramural causes. Now, what is a volvulus and what is an intersusception? A volvulus basically means a rotation of a loop of intestines about its mesentery. So, ये हमारे पास अगर एक loop है and it rotates on its own self, ये आपके पास rotation undergo कर जाएगा, then this is a volvulus, and obviously because of this rotation, ना सिर्फ obstruction cause होगी, but आपके पास blood supply will also be compromised. Intersusception, on the other hand, is basically the prolapse of a proximal segment of intestine into a distal segment. So this is basically an intersusception. इसको हम telescoping of one segment into the other भी कहते हैं. जो आपके पास intersusception होती है, this meeting point of the two loops, इसको हम neck कहते हैं.
जो आपके पास अंदर गया हुआ होता है पोर्शन, इसको हम एपेक्स कहते हैं, एंड दिस होल मास विल बी कॉल्ड एन इंटरसेप्शन। एंड द थर्ड कॉज जो हमारे पास हो सकता है वो कोई भी, अगर आपके पास पेरिटोनियम में कोई भी आपके पास पेरिटोनाइटिस हुआ था, कोई प्रीवियस सर्जरी हुई थी, किसी भी वजह से अगर एडहेशंस बन गई हैं, so these adhesions can also result in the intestinal obstructions. In the case of the adynamic intestinal obstruction, peristalsis does not occur. फॉर एग्जाम्पल अगर पैरालिटिक इलियस की हम बात करें, सो उसमें क्या होता है कि जो आपके पास न्यूरोमस्कुलर सप्लाई होती है टू द मेसेंटेरिक प्लेक्सस एंड द मीसनर्स प्लेक्सस, वो हमारे पास नहीं रहती, उसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही होती, एंड देयरफॉर आपके पास देयर इज अ सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। या फिर अगर हमारे पास कोई मेसेंटेरिक वैस्कुलर ऑक्लूजन हो जाए, तो इन दैट केसेस भी हमारे पास पेरिस्टाल्सिस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एंड देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन। सो एक्चुअली कोई चीज आपके पास इंटेस्टाइन्स को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही, बट क्योंकि peristalsis है नहीं, so the propulsive force which is required to move the food to the intestines, that is absent, and that also results in an intestinal obstruction. Now we need to understand certain changes which occur secondary to obstruction in the cases of dynamic intestinal obstructions. अब इन अ नॉन स्ट्रैंगुलेटिंग इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास जो चेंजेस आएंगे वो बेसिकली कुछ इस तरह के होंगे। ये एक इंटेस्टिनल लूप है एंड इसमें आपके पास एट दिस पॉइंट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। इनिशियली जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो हमारे पास जो डिस्टल सेगमेंट होता है उसके अंदर आपके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ फूड वगैरह, लेकिन इवेंचुअली वो सारा का सारा या तो आपके पास एब्सॉर्ब हो जाएगा और या फिर वो आपके पास आगे इवैक्यूएट हो जाएगा। सो दिस डिस्टल सेगमेंट विल बिकम एम्प्टी और इसके अंदर फिर ये कोलैप्स कर जाएगा एंड पेरिस्टाल्सिस भी खत्म हो जाएगी। जो प्रोक्सिमल सेगमेंट होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास देयर इज इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ ऑफ पेरिस्टाल्सिस ताकि जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिलीव किया जा सके, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि जब वो आपके पास रिलीव नहीं होती, this proximal segment becomes dilated और after dilation इसके अंदर peristalsis का paralysis हो जाता है, so there is no peristalsis and there is dilatation of the proximal segment. Proximal segment की dilatation में दो चीजें contribute करती हैं। एक तो there is accumulation of aerobic and anaerobic bacteria, so gas accumulate हो जाती है। जो major gas यहाँ पर present होगी that will be nitrogen and hydrogen sulfide। दूसरी चीज यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड्स एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इफ वी सी तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और फिर इवेंचुअली जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द फ्लूइड्स आ रहे होते हैं। 8 लीटर ऑफ फ्लूइड्स दिस विल बी रिसीविंग, जो कि हमारे पास सिलाइवरी सिक्रीशंस हैं, स्टमक से सिक्रीशंस आ रही हैं, ड्यूडेनम से सिक्रीशंस आ रही हैं, पैंक्रियाज से, लिवर से, एंड ऑल ऑफ दीज सिक्रीशंस आर इवेंचुअली मोर और लेस एब्सॉर्ब्ड। However, अब हमारे पास क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, बिकॉज अब आगे फूड प्रोपेल नहीं कर पा रहा, तो जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है दैट विल इंक्रीज। दिस इंक्रीज्ड इंट्राल्यूमिनल प्रेशर विल कोलैप्स द वेन्स एंड द लिम्फेटिक चैनल्स, जिसकी वजह से जो normal absorption होनी होती है, that absorption is impaired. So there is an accumulation of both fluid and gases, and as a result of that, the proximal segment undergoes dilatation and paralysis of peristalsis, whereas जो distal portion होता है वो आपके पास narrow हो जाता है और उसके अंदर भी हमारे पास peristalsis खत्म हो जाती है। Now finally जो हमारे पास region of obstruction होता है, eventually it will undergo gangrene, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो वीनस चैनल्स जो है वो आपके पास कंप्रेस्ड हो जाएंगे, और जब ये वीनस चैनल्स कंप्रेस्ड हो जाएंगे तो आपके पास इवेंचुअली देयर विल बी इंक्रीज्ड कैपिलरी प्रेशर। दिस इंक्रीज्ड कैपिलरी प्रेशर विल कॉज इंक्रीज्ड आपके पास थिकनेस ऑफ द वॉल और वो हमारे पास आर्टरीज को कोलैप्स करा देगा, एंड दिस विल इवेंचुअली रिजल्ट इन द गैंग्रीन ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन्स। सो दीज आर द चेंजेस जो कि हमारे पास इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के सेकेंडरीली अगर कर रहे हैं। Now let's talk about कि आपके पास intestinal obstruction का एक केस प्रेजेंट कैसे करेगा। The 4 major presenting symptoms are abdominal pain, vomiting, distension and absolute constipation. अब जो abdominal pain होती है in the case of an acute intestinal obstruction of small intestine, this abdominal pain is generally present in the umbilical region, whereas in the case of the large bowel obstruction, this pain is present in the lower abdomen or in the suprapubic region. Second चीज हमारे पास आती है vomiting.
अब वॉमिटिंग का ऑनसेट कब होगा, दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपके पास साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन है इट इज वे हाई अप इन द ड्यूडेनम, तो आपके पास वॉमिटिंग का ऑनसेट जल्दी होगा एंड इट विल कंटेन द बिलस कॉन्टेंट्स। हाउएवर जब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन विल बी वे डाउन, या तो हमारे पास कहीं लार्ज कोलन में जाके हो रही है, या फिर हमारे पास वो कहीं जाकर sigmoid लेवल पर है, सो वॉमिटिंग का ऑनसेट लेट होगा एंड इट विल आल्सो कंटेन द फीकल मटेरियल। सो इसका ऑनसेट कब होगा और इसके कंटेंट्स कैसे होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द एनाटॉमिकल साइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। थर्ड सिम्टम इज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन and lastly absolute constipation है। Now absolute constipation basically means कि ना तो हमारे पास fecal material पास कर रहा है और ना ही हमारे पास flatus पास कर रही है। अगर there is partial constipation, in that case हमारे पास fecal material पास नहीं कर होगा, but there can be passage of flatus, and partial constipation is seen in the cases of pseudo obstructions. Absolute constipation does not have to be present with intestinal obstruction अगर इसका cause is any Richter's hernia, या फिर अगर हमारे पास जो है ऑब्स्ट्रक्शन के साथ देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ पेल्विक एब्सेस, या फिर हमारे पास जो है देयर इज mesenteric vascular occlusion। ये हमारे पास कुछ सर्टेन केसेस हैं जिसमें इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी होती है बट कॉन्स्टिपेशन इज नॉट नेसेसरली प्रेजेंट। हाउएवर एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन का अगर क्वार्टेट प्रेजेंट है तो यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। जो साइंस आपको नजर आ रहे हो सकते हैं उसमें डिहाइड्रेशन है, tenderness है and pyrexia है। The dehydration which occurs in the cases of intestinal obstruction is basically because of 4 reasons. पहला reason मैं आपको already बता चुकी हूँ कि the small intestines they receive large amount of fluid जो कि reabsorb होना होता है, लेकिन because reabsorption नहीं हो रही होती है, so there are large losses of fluid in the intestines and that is one of the reasons for dehydration. Secondly, क्योंकि आपके पास जो है वो matter मतलब जो भी खाना वगैरह वो आगे नहीं पास हो रहा होता, so oral intake भी कम हुई भी होती है, तो that is also a cause for dehydration. थर्ड कॉज हमारे पास जो होता है फॉर द डिहाइड्रेशन इट इज के हमारे पास जो है वो सारा का सारा फ्लूइड एक तो आपके पास एब्जॉर्ब वापस नहीं हो रहा, ऊपर से वो सिक्रीट हुए जा रहे हैं विद इन दी इंटेस्टाइन्स। तो ये हमारे पास जो है वो मेजर कॉजेस होते हैं फॉर। एंड द लास्ट रीजन इज दैट कि हमारे पास वॉमिटिंग भी हो रही होती है। सो दीज आर द 4 मेजर रीजंस जिसकी वजह से देयर विल बी डिहाइड्रेशन, दैट इज डिक्रीज्ड ओरल इनटेक, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन कम हो रही होगी और हमारे पास सिक्रीशन ज्यादा हुई भी होगी, एंड लास्टली देयर विल बी वॉमिटिंग। सेकेंड जो चीज हो सकती है दैट इज टेंडरनेस। जो टेंडरनेस होती है इन दिस केस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन बिकॉज टेंडरनेस आपको हेल्प करती है टू डिफरेंशिएट बिटवीन strangulating and a non-strangulating intestinal obstruction. So इसके लिए we discuss first कि strangulating और non-strangulating का फर्क। Basically a strangulating intestinal obstruction is one जिसमें हमारे पास ना सिर्फ obstruction हुई हुई हो बल्कि blood supply भी compromised हो जाए, which will result in the ischemia and the gangrene of the intestinal loop. For example, अगर हम ये वाली picture consider करें, This is an example of a closed loop obstruction. अगर किसी भी adhesion की वजह से यहाँ पर there is strangulation, तो ना सिर्फ obstruction produce होगी बल्कि blood supply भी compromise हो जाएगी, and the portion of the intestines which is distal to this adhesion or this obstruction, it will undergo gangrene. So अब आप कैसे differentiate कर सकते हो strangulating and non-strangulating intestinal obstruction को on the basis of the clinical picture? पहली चीज ये है कि आपके पास जो पेन होती है of strangulating intestinal obstruction that never truly goes away, वो आपके पास कभी भी रिलीव नहीं होती पूरी तरह से। दूसरी चीज ये होती है that patient presents with the signs of shock. शॉक में क्या हो रहा होता है कि आपके पास आपकी थ्रेडी पल्स हुई भी होती है, इसके अलावा आपका हाइपोथर्मिया हुआ होता है, तो सारी जो चीजें होती हैं शॉक की they will be present in the case of a strangulating intestinal obstruction. और तीसरी चीज वो होती है कि टेंडरनेस। अब टेंडरनेस अगर आपके पास है इन केस ऑफ एनी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, वॉल्वुलस हुआ है, इंटरसेप्शन हुई है, देयर कैन बी लोकलाइज्ड टेंडरनेस जो कि आप इलिसिट करा सकते हो, बट इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेटिंग इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन localized tenderness is always present and it is associated with either rigidity या फिर rebound tenderness हो रही होती है. So this will help you to distinguish a strangulating from a non-strangulating intestinal obstruction. And the third thing is
Now, the pyrexia which is seen in with the intestinal obstruction either indicates कि या तो perforation हो चुकी है, peritonitis हो चुका है, या फिर there can be any inflammation which is associated with it, or it can also indicate कि ischemia हो रहा है. These three things are indicated by the pyrexia. Now, अगर आपके पास एक patient आया है जिसको इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हाउ विल यू मैनेज दैट केस? सबसे पहले आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ेंगी. तो आप बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस तो कराओगे, उसमें आप उसकी कंप्लीट ब्लड पिक्चर करा लोगे, उसके एलएफटीज करा लो, उसके आरएफटीज करा लो, क्रेटिनिन, यूरिया लेवल्स, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करा लो. ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल डू. देन जो हमारे पास बेसिकली डायग्नोस्टिक होता है दैट इज एक्सरे एब्डोमेन. पहले हम इरेक्ट पिक्चर्स भी लेते थे, अब सुपाइन भी लेते थे, लेकिन अब हम सिर्फ जो है वो सुपाइन लेते हैं. अब हमारे पास करते क्या है कि हम जो है वो जब लेते हैं, गैस से हमने डिस्टेंड करवाना होता है आपकी इंटेस्टाइन्स को. अगर हमारे पास जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, तो जो आपके इंटेस्टिनल लूप्स होते हैं वो आपको मोर और लेस इन द सेंटर यानी कि अम्बिलिकल रीजन में ही नजर आ रहे होते हैं. सो हमारे पास हम कहते हैं कि जो आपके पास पिक्चर आती है, इफ द ऑब्स्ट्रक्शन इज एट द लेवल ऑफ आइलियम, तो आपको जो है वो हम कहते हैं कि दिस इज बेसिकली फीचरलेस. बस आपको सेंट्रली लूप्स नजर आ रहे होते हैं इंटेस्टाइन्स के विच आर फीचरलेस. हाउएवर इफ द ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ द जेजुनम, तो उसमें हमारे पास जो एयर और फ्लूइड का लेवल आ रहा होता है दैट फॉर्म्स अ स्टेप लैडर पैटर्न. इसमें हमारे पास पिक्चर है विच यू कैन सी. स्टेप लैडर पैटर्न में ना यू कैन सी के जो हमारे पास डायलेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स होते हैं वो किस तरह से नजर आ रहे होते हैं. एज यू कैन सी दीज आर द लूप्स, और इसमें हमारे पास ये जो वैल्वुला कॉन्वेंटीज हैं ये कंप्लीटली जो है विड्थ ऑफ द बोल को ट्रांसवर्स कर रही होती हैं. ऑन द अदर हैंड हमारे पास अगर आप लार्ज बोल को देखोगे तो व्हेन इट इज डिस्टेंडेड, तो इसमें हमारे पास हॉस्ट्रेशंस नजर आ रही होती हैं, बट दे विल नॉट कंप्लीटली ट्रांसक्राइब दी लार्ज बोल विड्थ. ठीक है, और इसके अलावा दे आर ऑल्सो नॉट स्पेस्ड रेगुलरली. एज यू कैन सी ये वेरी रेगुलरली स्पेस्ड होते हैं, विच इज वाई इसको हम स्टेप लैडर अपीयरेंस कह रहे होते हैं. सीकम आपको कैसी नजर आएगी अगर डायलेटेड होगी? सीकम जो है वो बेसिकली आपके पास एक राउंडेड गैस का शैडो नजर आ रहा होगा. लार्ज इंटेस्टाइन आपको इस तरह से नजर आ रही होगी जिसकी हॉस्ट्रेशंस विल बी वेरी विजिबल, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आपको इस तरह से नजर आ रही होंगी where you can see the valvular conventees transcribing the width of the small intestine. Now इसकी बेसिस पे आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस लेवल के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है. बट एन इवन बेटर इन्वेस्टिगेशन वुड बी अ सीटी स्कैन, जिससे भी आप ये देख सकते हो कि क्या लेवल है ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, और आपके पास जो है वो क्या फ्लूइड गैस लेवल प्रेजेंट है, एंड किस साइड पर ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी. Once you have reached your diagnosis of intestinal obstruction, then how will you treat it? The first step is basically the resuscitation of the patient. अब resuscitation of the patient हमारे पास आप उन्हीं cases में करोगे जिसमें आपको emergency surgery नहीं करनी है. However, if patient जो है वो आपके पास present कर रहा है with the signs of shock, क्योंकि shock हमने कहा था अगर present है तो that indicates के strangulating intestinal obstruction है. उसके अंदर कोई shock के signs आ रहे हैं, उसके अंदर कोई perforation के sign आ रहे हैं, उसके अंदर कोई peritonitis के signs आ रहे हैं, तो obviously in those cases आप surgery को delay नहीं करोगे and फौरन करोगे. लेकिन वरना यू विल टेक सम टाइम फॉर रिससिटेशन. रिससिटेशन में आप करते क्या हो? पहली चीज आपने करती होती है कि आप गैस्ट्रिक के जो कंटेंट्स होते हैं, गैस्ट्रिक फ्लूइड्स, उनकी आपने ड्रेनेज करनी होती है. इसके लिए आप नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब पास कर दोगे, और इट विल ऑल्सो लेटर ऑन पोस्ट ऑपरेटिवली आपको हेल्प करेगी एनेस्थीसिया वगैरह देने के लिए. दूसरी आपने, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुई होती है पेशेंट्स के अंदर, तो आपने फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना होता है. सो उसके लिए आप नॉर्मल सेलाइन दे सकते हो या फिर आप हार्टमैन सॉल्यूशन दे सकते हो. तीसरी चीज एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स आर नॉट नेसेसरी इन एवरी केस, लेकिन दे देते हैं फॉर द पेशेंट्स, और स्पेशली अगर किसी के अंदर रिसेक्शन होनी हो तो फिर उसमें एंटीबायोटिक्स देना इज नेसेसरी. आफ्टर द रिससिटेशन ऑफ द पेशेंट आप आ जाओगे सर्जिकल मैनेजमेंट के ऊपर. अब सर्जिकल मैनेजमेंट आपने जो करनी होती है उसमें फर्स्ट थिंग आपने क्या देखनी होती है, यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके पास what is the site of the obstruction किधर हुई भी है, and you also need to see कि viability status क्या है of the affected intestinal loop. अब जो आपने सर्जिकल मैनेजमेंट करनी होती है उसमें बेसिकली आपने 3 चीजों को मैनेज करना होता है. यू हैव टू मैनेज द सेगमेंट जिसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी है,
the segment proximal to it जो कि dilate हुआ हुआ है, as well as the underlying cause of the obstruction, उसको भी आपने relieve करना होता है. So first of all हम क्या करते हैं, हम एक midline incision देते हैं because that provides us a good exposure. And सबसे पहले हम सीकम को देखते हैं. Now सीकम is a good marker to find out कि आपके पास जो obstruction है वो small intestine के level पर है या large intestine के level पर है. If the cecum is collapsed, ठीक है, वो shrink हुआ है, तो आपके पास obviously obstruction is at the level of the small intestine. और अगर जो cecum है वो distended है, इसका मतलब ये है कि obstruction कहीं large intestine में है. So अगर आपको cecum जो है वो collapsed मिलता है तो आप retrograde fashion में जाकर small intestine के अंदर obstruction देखोगे, और अगर आपको वो dilated मिलता है तो फिर आप anteriorly जाकर large intestine के अंदर obstruction देखते हो. Once you have found out the level of the obstruction, तो उसके बाद आपने उस obstruction को relieve करना होता है. And after you have relieved the obstruction, आप जो है वो decompress करते हो, जो उसका previous portion होता है. वो decompression आप जो है वो किसी भी catheter को डालकर कर सकते हो. Nasogastric tube के through भी आप basically decompression ही कर रहे होते हो of the proximal segment of the intestines. Finally जो आपने चीज करनी होती है वो आपने देखना होता है कि after you have relieved the obstruction, चाहे उसका जो भी cause था, आपने उसको रिलीव कर दिया, तो यू हैव टू सी कि जो आपके पास इंटेस्टिनल लूप है whether it is viable or it is not viable. अब viability check आप कैसे करते हो? अगर आपके पास वायबल लूप होगा तो उसका पहले जो कलर डार्क है, जब दोबारा से उसकी ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी, इट विल बिकम लाइटर एंड इफ यू प्रिक द मेसेंट्री इट विल ब्लीड. दूसरा, उसका जो पेरिटोनियम है दैट विल बी शाइनी, और उसका जो मसल्स होंगे दे विल बी फर्म एंड पेरिस्टाल्सिस विल बी प्रेजेंट. अगर ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब है कि आपका वाइबल लूप ऑफ इंटेस्टाइन्स है. However, if its color remains dark and if you prick the mesentery, it does not bleed, या फिर उसकी जो पेरिटोनियम है it has become lusterless, या फिर जो उसकी muscular coat है that is not firm, वो आपके पास flabby हो चुकी है और कोई peristalsis भी नहीं हो रहा, this means that it has undergone gangrene. Sometimes आपको immediately नहीं पता चलता है, so you leave the loops for some time, आप उनको जो है वो covered रखते हो, उनका temperature आप maintain करते हो, and then you reassess the loops. आपके पास अगर तब भी नहीं पता चलता तो समटाइम्स 24 to 48 आवर्स के बाद आपको सेकेंड लुक लेप्रोटमी करनी पड़ती है टू मेक श्योर कि वेदर द लूप्स आर वायबल और नॉट. अब अगर हमारे पास जो इंटेस्टिनल लूप्स हैं उनका गैंग्रीन हो चुका है तो फिर आप क्या करोगे, आप सिंपली रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस कर दोगे. What can be the complications अगर आप इसकी सही से मैनेजमेंट नहीं करते? The complications which can occur range from dehydration, oliguria, shock, septicemia, acute respiratory distress syndrome to peritonitis. So ये basically चीजें हैं जो कि हमारे पास intestinal obstructions को complicate कर सकते हैं. Now हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी बेसिकली इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस की, जिसमें हमने कहा कि इंट्राल्यूमिनल कॉजेस में आपके पास सारे गॉलस्टोन्स हैं, कोई भी आपके पास मैस प्रेजेंट हो सकता है, कोई स्टर्कोलिथ हो सकता है, कोई ट्राइकोबिजॉर्स हो सकता है, कोई फाइटोबिजॉर्स हो सकते हैं. सो उनकी ट्रीटमेंट सिंपली क्या होगी, दैट यू विल आइदर, अगर तो वो आपके पास वैसे ही रिमूव हो सकता है तो आप उसको रिमूव कर दोगे, और यू विल ओपन द इंटेस्टिनल लूप एंड आप उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर दोगे. सो दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. अगर हमारे पास कोई एडहेशंस प्रेजेंट होती है, सो हाउ विल यू मैनेज एडहेशंस? अब एडहेशंस का ये है कि यू विल ओपन, आपका कुछ एडिशंस ना ऐसी होती हैं जो कि खुद ही रिजॉल्व कर जाती हैं. सो उसमें आप ये होता है कि अप टू 72 आवर्स आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हो. अगर वो एडिशंस खुद ही रिजॉल्व कर जाती हैं तो वो 72 आवर्स तक हो जाएगी. अगर 72 आवर्स तक वो रिजॉल्व नहीं करती हैं तो फिर आप लेप्रोटमी जो है वो करते हो. आप सिर्फ उस एडिशन को कट करोगे, डाइसेक्ट करोगे, एंड ऑल्सो वेरी केयरफुली डाइसेक्ट करोगे which is causing the obstruction. बाकी सारी एडहेशंस को आप डाइसेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, बिकॉज अगर आप उनको डाइसेक्ट करोगे दोबारा से एडहेशंस बन जाएंगे. एडहेशंस बनती क्यों है कि जिन जगहों पर हमारे पास पेरिटोनियम डैमेज हो जाता है या कुछ स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाते हैं तो आपके पास एडहेशंस बन जाती हैं. सो एडहेशंस को आप ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं एडहेशंस के वो बेसिकली आफ्टर ऑपरेशन ही होते हैं. तो आप यही कर सकते हो, कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी कर रहे हो, कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर कर रहे हो, तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल कि आप गॉज के साथ कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज कर दो, आप नॉर्मल सिलाइन से क्लीन अप करो,
एब्डोमिनल कैविटी को, सो दैट कोई भी क्लॉट्स वगैरह नहीं रह गए हैं, और जो भी रॉ सर्फेसेस हैं उनको आप पेरिटोनियल या ओमेंटल ग्राफ्ट से कवर करते हो. सो दीज आर मेनली प्रिवेंटिव मेजर्स. लेकिन अगर आपकी एडहेशंस बन गई हैं, सो यू विल ओनली रिलीव द पॉजिटिव एडहेशंस, बाकियों को आप वैसे ही छोड़ दोगे और उसके बाद आप जो है वो उनको ओमेंटल ग्राफ्ट से कवर अप कर दोगे. देन यू विल चेक फॉर द वाइबिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन. अगर तो वो हमारे पास वाइबल है तो आप उसको जो है वो वैसे ही छोड़ दोगे. इफ इट इज नॉट वाइबल तो या तो आप उसकी जो है वो मतलब उसको इनवर्ट्स टर्न कर देते हो या फिर आप उसकी रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस कर सकते हो. सो दैट वाज द ट्रीटमेंट फॉर एडहेशंस. नाउ अगर हम बात करें वॉल्व्यूलस एंड इंटरसिसेप्शंस की, सो let us discuss our first case for the day, which is basically this. An 8-month-old child presents to emergency with the complaints of sudden abdominal pain, vomiting for 24 hours, passing blood and mucus in stool. Abdominal examination shows a sausage-shaped mass in the umbilical area. So, इसमें जो आपने important चीजें देखनी है, the first important thing is the age. Age आपके पास 8 months old आपका child है, ठीक है? I will. So an 8 months old child आपके पास present के emergency में, और उसकी complaints क्या है? There is sudden abdominal pain, vomiting for the past 24 hours and passage of blood and mucus in stool. Now on the basis of these complaints, आपके जहन में जो differentials आते हैं उसमें पहली चीज आती है gastroenteritis, because I think मेरे जहन में सबसे पहले यही आया था क्योंकि उसको pain भी है, vomiting भी है और blood and mucus भी आ रहा है in stool. However, there is no history of diarrhea, और gastroenteritis में diarrhea तो होता ही है, so gastroenteritis ruled out हो गया. Second thing which can happen is an interception, क्योंकि जो एज ग्रुप है वो आपके पास इंटरसेप्शन के लिए है. इंटरसेप्शन मोस्ट कॉमनली 5 to 10 months ऑफ एज पर हो रही होती है. सो 8 months ओल्ड मेल चाइल्ड है, इट कुड बी अ केस ऑफ इंटरसेप्शन. सारे कंप्लेंट्स भी आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन की है, एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है. ब्लड एंड म्यूकस इतना ज्यादा कॉमन नहीं होता, बट इंटरसेप्शन में ब्लड एंड म्यूकस जो है वो प्रेजेंट होता है इन स्टूल. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है which will favor our diagnosis of interception is the presence of a sausage shaped mass in the umbilical area. This is most commonly seen in the cases of interception. आगे हमारे पास other differentials में henoxon and purpuras हैं. However, in the case of purpura, there is also an ecmotic rash which is present on the extensor surfaces. क्योंकि इसमें कोई rash की history नहीं है तो ये भी rule out हो गया. It could be appendicitis, लेकिन पहली बात ये है कि appendicitis 2 years से पहले जो age होती है उसमें इतना common नहीं होता. And appendicitis में आपके पास जो mass भी होगा that will be present in the right iliac fossa. So सबसे likely जो हमारा diagnosis बनता है on the basis of this case is interception. Now let us dissect this case further. एक चीज तो हमने ये देख ली कि आपके पास 5 से 10 months ऑफ एज जो है वो कॉमन एज ऑफ प्रेजेंटेशन होती है फॉर इंटरसेप्शन. बाकी इसमें हमारे पास जो बच्चा होता है, अब बच्चे के अंदर एब्डोमिनल पेन आपके पास कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ही इज अ स्मॉल चाइल्ड, ही इज नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट इट. सो बच्चों में जो पेन की प्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह से होती है कि पहले नॉर्मल था बच्चा एंड अचानक से he started screaming and lifting his legs during crying, and then episodes हैं जो कि बीच में आपके पास पेन रिलीव होती है and child is very listless, बहुत ही थका हुआ बेसूद हो जाता है, and then उसको दोबारा से पेन होती है and during the pain child becomes very पेन. तो ये हमारे पास एक कॉमन प्रेजेंटिंग जो है ना आपके पास कंप्लेंट होगी फ्रॉम द मदर अबाउट एब्डोमिनल पेन इन द चाइल्ड. अब इस पेन का कैरेक्टर कैसा होता है? इट इज कॉलिक एब्डोमिनल पेन एंड ये जनरली अम्बिलिकल एरिया में हो रही होती है. वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग विल बी बिलियस एंड इट विल डिपेंड कि आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन किस साइड पर या इंटरसेप्शन कहाँ पर हुआ है. बच्चों में मोस्ट कॉमनली इलियोकोलिक हो रहा होता है और एल्डरली में हमारे पास बेसिकली कोलोकोलिक हो रहा होता है. सो इलियोकोलिक इज वेरी कॉमन इन द केसेस ऑफ चिल्ड्रन. उसके अलावा इसीलिए क्योंकि इलियोकोलिक हो रही होती है तो जो सॉसेज शेप्ड मास होता है दैट इज आल्सो प्रेजेंट नियर द अम्बिलिकस. फिर है ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल. ब्लड एंड म्यूकस जो है वो इनिशियली आपके पास प्रेजेंट नहीं होता, स्टूल्स आर नॉर्मल. लेटर ऑन ब्लड एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है इन स्टूल एंड दिस स्टूल इज कॉल्ड द रेड करंट स्टूल. अब उन्होंने आपको एक साइन तो बता दिया है कि आपके पास मास प्रेजेंट हो जाएगा जब आप जो है वो पैल्पेट करोगे, तो यू विल बी एबल टू पैल्पेट अ सॉसेज शेप्ड मास इन द अम्बिलिकल एरिया. सेकेंड चीज ये होती है कि देयर इज emptiness की feeling in the right iliac fossa and this is basically known as the dance sign. So dance sign is basically feeling of emptiness in the right iliac fossa. ये दो signs होते हैं which are important in the case of interception.
अब व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशंस जो कि आप कैरी आउट करोगे? आप एक्सरे फिल्म्स दोगे, उस पे आपको सीकल गैस शैडो एब्सेंट मिलेगा, क्योंकि सीकम जो है उसके बेसिकली इलियोसीकल ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास हुई है, तो सीकल जो आपके पास गैस शैडो है दैट विल बी एब्सेंट। बैरियम एनीमा करोगे तो उसमें आपको क्लॉस साइन मिल रहा होता है। हाउएवर अगर आपके पास जो है वो स्मॉल बोल के लेवल पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो, फॉर एग्जांपल इलियल अगर इंटरसेप्शन हुई है, तो वो आप इसकी बेसिस पर डायग्नोज नहीं कर सकते। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। इस पे आपको डोनट शेप्ड मैस मिल रहा होगा इन द ट्रांसवर्स सेक्शंस, एंड दिस इज डायग्नोस्टिक फॉर इंटरसेप्शन। सीटी स्कैन आप सिर्फ उन केसेस में करते हो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। सो दीज आर द वेरियस इन्वेस्टिगेशंस दैट यू कैन डू। नाउ हाउ विल यू मैनेज अ केस ऑफ इंटरसेप्शन? द फर्स्ट thing that you will do will be resuscitation, और resuscitation में we know that आपने 3 चीजें करनी होती हैं। आपने जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है वो पास करनी होती है, ताकि कि आप जो ड्रेनेज है वो कर सको एंड डिकम्प्रेशन कर सको। दूसरा आपने करनी होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को करेक्ट करना होता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को, और तीसरी चीज आप एंटीबायोटिक्स देते हो। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू अटेम्प्ट टू डू इन द केस ऑफ एन इंटरसेप्शन इज अ नॉन ऑपरेटिव रिडक्शन। नॉन ऑपरेटिव रिडक्शन आप न्यूमैटिक रिडक्शन भी कर सकते हो और आप हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन भी कर सकते हो। न्यूमैटिक रिडक्शन में बेसिकली आप एयर अप्लाई करते हो, और हाइड्रोस्टैटिक में आप जो है वो बैरियम या सिलाइन भी डाल सकते हो। सो बेसिकली कैथेटर आप पास करते हो थ्रू द रेक्टम, एंड विद द प्रेशर ऑफ द एयर और द फ्लूइड हमारे पास जो इंटरसेप्शन हुई होती है वो रिलीव हो जाती है। हाउएवर नॉन ऑपरेटिव रिडक्शन आप नहीं करोगे अगर देयर आर एनी साइंस ऑफ पेरोटिनाइटिस, या फिर देयर आर एनी साइंस ऑफ इंफाक्शन, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ स्ट्रैंगुलेशन हुई है। सो इन ऑल दोस केसेस आप नहीं करोगे। और इफ देयर इज एनी लीड पॉइंट बेसिकली ये होता है कि बच्चों में जनरली जो हमारे पास इंटरसेप्शन हो रही होती है दैट इज इडियोपैथिक, के मतलब बस ये होता है कि उनके अंदर कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई थी, या कोई हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस थी, जिसकी वजह से जो आपके पास टर्मिनल आइलियम के अंदर पेयर्स पैचेस होते हैं उनका हाइपरप्लेसिया हो जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन द प्रोलैप्स ऑफ द इलियम इनटू द सीकम। सो आपके पास जो है वो जनरली बच्चों में रीजन नहीं होता। लेकिन इफ देयर इज एनी लीड पॉइंट, यानी कि बच्चों के अंदर कोई पॉलिप्स प्रेजेंट हैं, या कोई भी आपके पास ऐसी चीज है जो कि आपके पास प्रोपेल कर रही है, कोई ऑर्गेनिक कॉज है जो कि प्रोपेल कर रहा था, कोई डाइवर्टिक्यूलम है, मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम है, कोई अपेंडिक्स है, कोई भी ऐसा कॉज है जो कि हमारे पास प्रोपेल करवा रहा है, तो अगर आप उस कॉज को ट्रीट नहीं करोगे एंड सिर्फ नॉन ऑपरेटिव रिडक्शन कर दोगे तो दोबारा से रिकर करता रहेगा। सो इसलिए नॉन ऑपरेटिव रिडक्शन, अगर कोई लीड पॉइंट प्रेजेंट है यानी कि कोई कॉज है प्रेजेंट, तो उस केस में भी आप जो है वो नॉन ऑपरेटिव रिडक्शन नहीं करते हो। नॉन ऑपरेटिव रिडक्शन का जो सक्सेस रेट होता है वो 70% होता है। दी ओनली रिस्क इसके समटाइम्स इसमें आपके पास परफोरेशन हो सके जिसकी वजह से पेरोटिनाइटिस हो सकता है, बट दिस इज नॉट अ वेरी मतलब इतनी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ये। सर्जिकल रिडक्शन आप ऑब्वियसली उन केसेस में करोगे जिसमें या तो नॉन ऑपरेटिव रिडक्शन हैज फेल्ड या फिर इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सर्जिकल रिडक्शन में आपने क्या करना होता है कि बेसिकली जो मोस्ट डिस्टल पार्ट होता है उसको आपने डीकम्प्रेस करके उसके ओरिजिन की तरफ लेकर जाना होता है, बट यू नेवर पुल। सो अगर हम इसको सिंपल केसेस में डिस्क्राइब करें, इट इज सपोज टू बी लाइक दिस कि आपके पास दिस इज द इंटरसेप्शन, इस लेवल पर हमारी इंटरसेप्शन हुई भी है। सो जो सबसे डिस्टल पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्शन है, यहाँ को इधर आप कंप्रेस करके इसको अपने ओरिजिन की तरफ जो है वो पुश करोगे, यू डोंट पुल। अगर हमारे पास जो है वो दिस इज हार्ड टू डू, तो फिर आप अपनी लिटिल फिंगर को इसकी नेक में इंसर्ट करके कोई भी अगर एडहेशंस वगैरह बनी हुई हैं तो उनको रिलीव करते हो, एंड देन यू अटेम्प्ट टू पुश इट थ्रू। ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो इंटरसेप्शन को सर्जिकली रिड्यूस करने का तरीका होता है। वंस इट हैज बीन रिड्यूस्ड तो आप वाइबिलिटी चेक करते हो of the segment। अब edematous होता है initially and sometimes it would also be bleeding, लेकिन आपने viability उन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर चेक करनी है that एक तो कि उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस हो, जिसकी पेरिटोनियम हो, that is shiny, और जो मेसेंट्री है या तो वो ब्रीड करी, या फिर जो कलर है that later on returns to normal। So अगर आपके पास वो नॉर्मल है तो फिर तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो। If it is not viable तो फिर आप उसकी section and anastomosis करवा देते हो। So this is how you will manage a case of interception। जो सेकेंड हमारे पास केस है, it is this. 60-year-old male presents in ER with the complaints of severe abdominal pain, rapidly progressing distension, absolute constipation, and vomiting. On examination, abdomen is distended, sluggish, bowel sounds हैं,
X-ray plain abdomen shows the dilated loop of large balls running from the right to left with the two fluid level. Again, इसमें भी पहली चीज आप देखोगे कि what is the age of presentation. This is 60-year-old male और आपके पास उसके अंदर जो complaints हैं, these are abdominal pain है, distension है, constipation है and vomiting. As you can see, these are the quartets of intestinal obstruction. तो आपकी ये चारों चीजें पूरी हो गई हैं, so you will think of intestinal obstruction. अब it could be any case of the large bowel obstructions. It could also be bowel perforation. लेकिन ये कोई भी cause हो सकता है. फिलहाल हमें नहीं पता कि ये exactly कौन सा cause है. But because it is a 60-year-old male, तो इसमें most commonly आपके पास क्या हो सकता है कि किसी carcinoma की वजह से या तो interception हुई भी हो सकती है. It could be a volvulus. It could be कि उसकी hernial orifices के अंदर वो बाहर निकल गया. मतलब it could be anything. आगे अगर हम देखते हैं तो ऑन एग्जामिनेशन जो एब्डोमेन है वो तो डिस्टेंडेड है एंड बोल साउंड्स उसकी स्लगिश हुई भी है. The diagnostic thing will be that X-ray plain abdomen shows dilated loops of large bowel running from the right to left with the two fluid level. अब ये जो आपके पास X-ray की पिक्चर है, this is of a volvulus. और ये कौन सा volvulus होता है? This is a sigmoid volvulus. So diagnosis आपके पास इस केस में volvulus का निकलता है. Now if we discuss volvulus briefly, तो मैंने पहले शुरू में बताया था कि volvulus is basically the rotation of a loop of intestine about its mesentery. अब हमारे पास volvulus क्यों हो सकता है, इसकी क्या टाइप्स होती हैं? सबसे पहले तो यह है कि volvulus could be primary or it could be secondary. प्राइमरी वॉल्वुलस वो होता है जो कि किसी कंजेनिटल कॉजेस की वजह से हो रहा होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास मैलन्यूट्रिशन हुई हुई है गट की, उसकी वजह से बच्चों में हो जाता है वॉल्वुलस, इसको हम वॉल्वुलस नियोनेटोरम कहते हैं एंड इट इज अ मिड गट वॉल्वुलस हो रहा होता है. Or it could be because of any congenital bands, like अगर आपके पास जो है वो present होता है वो जो आपकी वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट होती है वो प्रेजेंट होती है, इट इज अ कंजेनिटल बैंड, उसकी वजह से हमारे पास हो सकती है. किसी भी कंजेनिटल रीजन की वजह से अगर हमारे पास जो है वो वॉल्वुलस हो रहा है, दैट इट विल बी प्राइमरी. प्राइमरी में हमारे पास वॉल्वुलस नियोनेटोरम आ जाता है. इसके अलावा the second is sigmoid volvulus and the third is cecal volvulus. ये सारे प्राइमरी होते हैं. सेकेंडरी वॉल्वुलस किसी भी स्टोमा के अराउंड हो सकता है, किसी भी एडहेशंस के अराउंड उसके एरियाज में आपके पास ये वॉल्वुलस हो सकते हैं. So these are secondary to some other causes. Now there are certain predisposing conditions जो कि हमारे पास वॉल्वुलस के चांसेस इंक्रीज कराती हैं. पहली चीज क्या होगी कि हमारे पास कोई एडहेशंस वगैरह प्रेजेंट है. दूसरी चीज ये होती है कि जो आपके पास देयर इज अ वेरी लार्ज रिडंडेंट पेल्विक कोलन. ठीक है. तीसरी चीज ये है कि जो आपके पास पेल्विक मिजेंट्री है दैट इज वेरी लॉन्ग और उसकी जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दैट इज वेरी नैरो. इसके अलावा अगर किसी के अंदर हमेशा से कॉन्स्टिपेशन रहती है या कोई बहुत ज्यादा हाई फाइबर डाइट लेता है, हाई फाइबर डाइट लेगा तो ऑब्वियसली फाइबर का भी कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो आपके पास डाइजेस्ट तो होती नहीं है इन द बॉडी. सो दीज आर ऑल कॉजेज जो कि हमारे पास रिजल्ट कर सकते हैं इन अ वॉल्वुलस. अब जब वॉल्वुलस होता है तो जो आपके पास दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं इन एडल्ट्स, दैट इज सीकल वॉल्वुलस एंड इट इज सिग्मोइड वॉल्वुलस. जो सीकल वॉल्वुलस होता है दैट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स और वो हमेशा आपके पास क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जबकि जो आपके पास सिग्मोइड वॉल्वुलस होता है वो हमारे पास ज्यादा कॉमन होता है इन द एल्डरली मेल्स एंड वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अंडरगो करता है. नाउ हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अ केस ऑफ वॉल्वुलस फर्दर? तो उसमें आप एक्सरे फिल्म्स ही लेते हो. सीकल वॉल्वुलस में अगर आप एक्सरे फिल्म लोगे तो आपको गैस फिल्ड आइलियम नजर आएगी. जब आप बैरियम अनीमा करते हो तो उस पर आपको बर्ड बीक डिफॉर्मिटी नजर आ रही होती है. दिस बर्ड बीक डिफॉर्मिटी इज डायग्नोस्टिक फॉर सीकल वॉल्वुलस. ऑन द अदर हैंड जब आप करते हो फॉर सिग्मोइड वॉल्वुलस तो आप एक्सरे फिल्म्स लेते हो, उसमें एक तो आपको कोलन की बहुत ज्यादा मैसिव डिस्टेंशन नजर आ रही है बिकॉज सिग्मोइड के लेवल पर आपके पास जो है वो सिग्मोइड कोलन के लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो उससे प्रॉक्सिमल जितनी पूरी कोलन है वो बहुत ज्यादा मैसिवली आपके पास डिस्टेंडेड नजर आ रही होती है. एंड देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ ओमेगा साइन. अब नॉर्मली आपको पता है ना कि आप इसी तरह से जा रही होती है इंटेस्टाइन्स के, वो हमारे पास स्टार्ट करी होती है फ्रॉम द राइट साइड, सीकम आता है, कोलन आता है, ट्रांसवर्स कोलन आता है एंड देन हमारे पास डिसेंडिंग कोलन आती है एंड देन सिग्मोइड एंड रेक्टम आती है. सो बेसिकली आपको जो है वो ओमेगा साइन जो है वो नजर आ रहा होता है कि आपको
मतलब एक पूरी जो है वो लूप ऑफ इंटेस्टाइन्स क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा होता है फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, पूरे एब्डोमेन को ट्रांसवर्सली क्रॉस करती हुई आपको नजर आ रही होती है। सो अगर मैं आपको ओमेगा साइन जो है वो दिखाऊं, हाउ दिस विल अपीयर ऑन अ रेडियोग्राफ। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट लुक्स लाइक, ये आपको नजर आ रहा है। It starts from the right side and it's crossing to the left side, और ये आपको पूरा जो mass नजर आ रहा है, this is basically the omega sign in the case of sigmoid volvulus. Now, how will you manage a case of a volvulus? उसमें भी सबसे पहले आपने कोई भी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है तो सबसे पहले आपने रिससिटेशन ही करनी है, दैट इज अगेन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है, ड्रेनेज करनी है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस मेंटेन करने, एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। देन अगर आपने मैनेजमेंट करनी है ऑफ द सीकल वॉल्वुलस तो इसमें आप लेप्रोटमी करते हो। अच्छा, एक जनरल बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो है कोई भी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन इन द लार्ज बोल प्रेजेंट होती है सीकम में, असेंडिंग कोलन में, हेपेटिक फ्लेक्चर पे, या फिर जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, अगर इधर आपके पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है तो उसको रिलीव करने के लिए आप राइट साइडेड हेमिकोलेक्टमी कर देते हो, ठीक है, यानी कि आप उसको पूरे के पूरे को रिमूव करते हो, तो आप राइट साइडेड हेमिकोलेक्टमी करते हो। अगर हमारे पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है सिग्मोइड लेवल के ऊपर तो उसकी आप करते हो रिसेक्शन, और रिसेक्शन करने के बाद आप जो है वो क्या करते हो कि आप पॉल मिक्यूलिक्स प्रोसीजर कर देते हो। उसमें बेसिकली आपने ये करना होता है कि ये आपकी दोनों जो रिसेक्टेड लूप्स थे इनकी आप कोलोस्टोमी कर देते हो, ठीक है, और उसके बाद आप इन दोनों का आपस में एनास्टोमोसिस कर देते हो। सो दिस इज बेसिकली द पॉल मिक्यूलिक्स प्रोसीजर। हाउएवर, अगर पेशेंट की कंडीशन इतनी खराब हो कि आप जो है एट दैट टाइम एनास्टोमोसिस नहीं कर सकते हो तो फिर आप एक डिस्टल पोर्शन को क्लोज करके वापस रिटर्न कर देते हो इन द एब्डोमेन एंड लेटर ऑन आप एनास्टोमोसिस कर लेते हो, विच इज नोन एज द हार्टमैन्स प्रोसीजर। सो आपने याद रखना है कि अगर कोई राइट साइड पे मतलब मसला है टिल द लेवल ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन तो फिर आपने करनी होती है राइट हेमिकोलेक्टमी, और अगर कोई आपके पास सिग्मोइड की लेवल पर प्रॉब्लम होता है तो इन दैट केस आप रिसेक्शन करते हो विद आइदर द पॉल मिक्यूलिक्स प्रोसीजर और हार्टमैन्स प्रोसीजर विद द सब्सिक्वेंट एनास्टोमोसिस, जो कि आप 4 to 6 वीक्स लेटर कर देते हो। सो जब भी हमारे पास कोई सीकल वॉल्वुलस होगा तो पहले तो आप उसको लेप्रोटमी पर ऑपरेटिव उसकी अनट्विस्टिंग करोगे। आफ्टर अनट्विस्टिंग यू विल चेक फॉर द वाइबिलिटी। अगर तो वो वाइबल है सीकम तो फिर आप उसकी सीकोपेक्सी कर सकते हो, यानी कि सिंपली आप उसको लैटरल एब्डोमिनल वॉल के साथ स्टिच कर दो, या फिर आप उसकी जो है वो स्टोमी भी कर सकते हो, सीकोस्टोमी भी आप कर सकते हो, यानी कि आप उसको बेसिकली ओपन कर दो ऑन दी एब्डोमिनल वॉल। अगर वो नॉन वाइबल है तो फिर आप राइट हेमिकोलेक्टमी कर दोगे। इन द केस ऑफ अ सिग्मोइड वॉल्वुलस आप पहले जो है वो अटेम्प्ट करते हो अ सिग्मोइडोस्कोपी, रिजिड या फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोप आप पास करते हो विद द फ्लैटेस्ट ट्यूब इंसर्शन। इससे हमारे पास ये फायदा होता है कि हमारे पास डीकम्प्रेशन हो जाती है and that will relieve the symptoms and it will also provide time कि आप एक अच्छा elective procedure कर सको। However, if sigmoidoscopy fails तो उसके बाद आपने फौरन से emergency लेप्रोटमी करनी होती है, आप operative untwisting करोगे of the loop, और फिर अगर आप चेक करोगे कि वो viable है और आपके पास experienced डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो इट इज बेटर कि आप सिग्मोइडोपेक्सी कर दो। सिग्मोइडोपेक्सी में आप उसको जो है वो रीट्रोपेरिटोनियल मतलब वॉल के साथ आप उसको अगेन स्टिच कर दोगे। However, जो आइडियल ट्रीटमेंट है दैट इज रिसेक्शन। रिसेक्शन के बाद आप पॉल मिक्यूलिक्स जो है वो प्रोसीजर कर सकते हो, या फिर इफ दैट इज नॉट पॉसिबल तो फिर आप सिंपली सिग्मोइड कोलेक्टमी कर दोगे फॉलोड बाय the Hartmann procedure. So these are the surgical managements of volvulus. The third case that I want to discuss is basically this. 30-year-old male is brought to ER with the complaints of distension, belching, and flatus. There is no history of abdominal pain or vomiting. He has history of leprotomy for resection caused by the Meckel's diverticulum 2 days back. Now, this is a case जिसमें आपके पास जो है previously abdominal procedure हुआ है 2 days back and following that within यानी कि 48 hours patient के अंदर abdominal distension होना शुरू हो गई है, belching होना शुरू हो गया है, but as yet there is no history of pain or vomiting. तो ये क्या है? Basically
ऑपरेशंस के बाद मोस्ट कॉमनली पोस्ट ऑपरेटिवली हमारे पास देयर कैन बी अ पैरालिसिस ऑफ द पेरिस्टालसिस व्हिच इज रिवर्सिबल एंड टेम्पररी एंड दैट इज नोन एज पैरालिटिक इलियस. पैरालिटिक इलियस के बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन कॉजेज इज पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस, जिसमें 24 से 72 आवर्स तक इट कैन लास्ट, बट आफ्टर दैट ये पेरिस्टालसिस आपके पास रिटर्न कर जाती है. ड्यूरिंग दैट टाइम पेशेंट के अंदर डिस्टेंशन भी हो सकती है, उसके अंदर वॉमिटिंग की हिस्ट्री भी हो सकती है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है. However, pain जो है in the case of paralytic ileus is usually not present. So आपके पास this is basically a case of paralytic ileus. Now paralytic ileus के हमारे पास जो important causes होते हैं उसमें एक तो पोस्ट ऑपरेटिव है. अगर 72 आवर्स के बाद भी आपके पास इट डज नॉट रिटर्न, जो आप फिर आप क्या करते हो कि आप जो है वो लेप्रोटमी करके कॉज उसका ढूंढते हो. सेकेंडली इट कुड बी एनी इन्फेक्शंस, ठीक है, पेरोटिनाइटिस हो सकता है, कोई सेप्सिस हो सकती है. It could be reflex ileus which occurs in cases of fractures of spine or ribs, या फिर अगर कोई retroperitoneal areas में कोई मतलब डैमेज हो गया है, कोई retroperitoneal hemorrhage हो गया है, कोई स्पाइन इफेक्ट हो गया, कोई रिब्स इफेक्ट हो गया है. और इट कैन ऑल्सो बी मेटाबॉलिक, ये हमारे पास यूरीमिया के केसेस में, हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में हो रहा होता है. What are the investigations जो आपने करनी होती हैं? The first investigation is कि आप एक्सरे कर लोगे, दूसरा ये कि आप अल्ट्रासाउंड कर लोगे, एंड आपने जो है वो बोल साउंड्स को चेक करना होता है, that the bowl sounds should return within 72 hours. अच्छा, अब हमारे पास मैनेजमेंट अगर वो रिटर्न जब तक नहीं करते तब तक आपने जो मैनेजमेंट करनी होती है उसमें आप रिससिटेशन करते हो. जनरली रिससिटेशन से पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है, और अगर आपके पास जो भी अंडरलाइंग कॉज है आप उसको ट्रीट करो. पेरिस्टाल्टिक स्टिम्युलेंट्स रूटीनली हम नहीं देते, लेकिन पेरिस्टाल्टिक स्टिम्युलेंट्स शुड ओनली बी गिवन अगर आपको कोई इंट्रा एब्डोमिनल कॉज या इंट्रा पेरिटोनियल कॉज नहीं मिलता, तो इन दैट केसेस आप एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दे सकते हो. फॉर एग्जांपल आप नियोस्टिग्मीन दे सकते हो, सो दैट विल हेल्प टू इंप्रूव दी पेरिस्टालसिस, बट दीज आर नॉट रूटीनली गिवन. अगर आपके पास ये सारी चीजें फेल कर जाती हैं, द पेरिस्टालसिस डज नॉट रिटर्न, तो फिर आपने ऑब्वियसली सर्जिकल इंटरवेंशंस करके कोई कॉज ढूंढना होता है फॉर द पैरालिटिक इलियस. एंड दीज वर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, एंड थैंक यू. अल्लाह हाफिज.